Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study our changing earth. Learning port, sudden movements, major landforms, continuous movements. ये आज के टॉपिक्स रहेंगे. Okay, the earth is a highly dynamic and active planet. We know that the earth moves around the sun and also on its own axis. Changes and movements constantly take place inside the earth. Okay, देखिए हमें ये अच्छे से पता है जो अर्थ है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट है और ये अपने एक्सिस पे घूमता है. ओके, ये सन के राउंड घूमता है और खुद के एक्सिस पे भी घूमता है. ओके, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं. ओके, नाउ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. These plates move around very slowly. Okay, now just a few millimeters each year. Okay, देखिए लिथोस्फीयर एक ब्रोकन टूटा हुआ है काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स में प्लेट्स में. ओके, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. ये प्लेट्स बहुत ही स्लोली मूव करती है. ओके, नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर. देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है. ओके, और ये जो मोल्टन मैग्मा होता है ये सेल्युलर मैनर में भी मूव करता है अर्थ के अंदर. ओके, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, अब यहाँ पे बताया गया जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की ये चेंज करती है अर्थ के सरफेस को. ओके, नाउ द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज देम. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth are called the exogenic forces. Okay, देखिए वो वाले forces जो कि अर्थ के इंटीरियर में काम करती है उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और वो फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. अर्थ मूवमेंट्स endogenic, exogenic. Okay, now endogenic में we have sudden movements, continuous movements, then earthquakes, volcanic eruption, landslide, building mountains. Here in exogenic forces we have erosional and depositional, rivers, wind, sea waves, glaciers. Okay, ये है evolution of landforms. Okay, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Both endogenic and exogenic forces work together to create the relief features of the earth. So after a fold mountain is formed by endogenic forces, it is weathered and eroded by exogenic forces which change its shape and appearance over the years. Okay, देखिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं दोनों की दोनों काम करती हैं रिलीफ फीचर्स को क्रिएट करने के लिए अर्थ के. ओके, तो जो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए गए हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस से ही हुए हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू वो इरोड हुए हैं. ओके, नाउ डू यू नो endogenic forces sometimes produce sudden movements and at other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the अर्थ. ओके, देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन मूवमेंट्स क्रिएट करती हैं और कभी कभी स्लो मूवमेंट्स भी क्रिएट करती हैं. सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गया और वोल्केनोस में मास डिस्ट्रक्शन जो होता है सरफेस के अंडर अर्थ के वो इसी से होता है. ओके, नाउ the movements of the plates cannot be even felt until and unless the plates interact with each other along with their boundaries. Human beings can feel the tremors of the interaction through earthquake. The tectonic plates may diverge from each other, converge with each other and slip past each other. Thus there may be three types of plate movements: divergent movements, convergent movements and lateral slipping. अलग अलग तरीके की movements होती है अंडर द ग्राउंड जिनको हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है divergent movements, convergent और lateral slipping. Okay, folding. Horizontal movements are caused due to the compressional forces operating in the earth's interior resulting in folding of the rock strata. Folding of the earth crust is responsible for the formation of the fold mountains. Folding of the earth crust ही responsible है folded mountains के लिए. Okay, the major mountains chains of the world, namely the Rockies on North America and the Andes of the South America, the Alps of the Europe and the Himalayas in India are example of fold mountains. ये जितने भी mountains बताए गए हैं इन जगहों पे ये इनको fold mountains कहते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Now fold mountains formed in recent geological period are called young fold mountains, while the mountains formed during the earlier geological period are called the old fold mountains. अब recently geological period में जो mountains fold हुए हैं उन्हें young fold mountains कहते हैं और पहले के टाइम पे
अर्लियर जियोलॉजिकल पीरियड में जो हुए थे उनको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. ओके, फोल्टिंग. When plates move, stresses and strains occur in the lithosphere, giving rise to fissures and fractures. This causes large-scale displacement of the rock structures, which is known as faulting. Okay, देखिए faulting क्या होता है. जब प्लेट्स मूव करती है, स्ट्रेस लेती है, स्ट्रेन करती है, उस हिसाब से लिथोस्फेयर में एक राइज होता है फ्रैक्चर्स का, फिशर्स का. ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट होती है रॉक स्ट्रक्चर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोल्टिंग. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स इन द रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली में क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं. ओके, नाउ when there are almost parallel folds of the earth, crust and land between them is either uplifted and remain at the same place even after the surrounding areas are subsided, a block mountain is formed. ओके, जब इस तरीके की मूवमेंट्स होती है एक ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होता है. द अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज द होस्ट और ब्लॉक माउंटेन एंड अ सबसाइडेड पार्ट इज रिफर्ड टू एज अ गार्बन और रिफ्ट वैली. देखिए, जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, हॉर्स्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन, और सबसाइडेड पार्ट जो होता है उसको गार्बन या फिर रिफ्ट वैली कहा जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल फोल्ड किस तरीके से है, होस्ट और गार्बन कैसे होते हैं. सडन मूवमेंट्स, अर्थक्वेक्स. Many factors such as the volcanic eruptions, movements of the lithospheric plates or even bomb explosions can cause the surface of the earth and shake. This shaking of the earth surface is called an earthquake. The place of origin of an earthquake is called focus. The point on the earth surface which is vertically above the focus is called epicenter. The variations of the earthquakes, the vibrations of an earthquake spread out a concentric way from the focus. The intensity of the earthquake is maximum near the epicenter. Okay, देखिए अर्थक्वेक्स कैसे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ओके, जहाँ अर्थ की मूवमेंट होती है उसको अर्थक्वेक कहते हैं. अर्थ का सरफेस हिल रहा है उसको अर्थक्वेक कहते हैं. जिस एरिया से ये मूवमेंट होना शुरू होता है उस एरिया को फोकस बोला जाता है. वो फोकस पॉइंट होता है जहाँ से अर्थ की जो सरफेस है वो मूव करती है. ठीक है, इन वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं अर्थक्वेक की वजह से, ये कॉन्सेंट्रिक वेव्स होती हैं जो कि फोकस से ही आती हैं. ओके, नाउ मोस्टली ये एपिक सेंटर के पास से ही होती हैं. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. नाउ हियर देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन ऑफ फोकस एंड एपिक सेंटर, यहाँ पे पूरे डायग्राम में बताया हुआ है. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ ट्रेवल, अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स. ओके, अब इस मॉडल ट्रेवल के हिसाब से अर्थक्वेक को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला है प्राइमरी वेव्स. ओके, द प्राइमरी वेव्स, P waves or push waves, are the first to arrive as they are the fastest. These waves usually travel at the speed of about 6 km per second. These waves causes relatively small displacements. Okay, देखिए प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स या फिर पुश वेव्स भी बोला जाता है. ये सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे पहले आ जाती हैं, अराइव करती हैं. ये वेव यूजुअली ट्रैवल करती है बहुत ज़्यादा स्पीड में, मतलब कि 6 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी इसकी स्पीड होती है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सेकेंडरी वेव्स. द सेकेंडरी वेव, एस वेव और शेक वेव्स वर नेक्स्ट टू अराइव. Their rate of movement is less than that of the P waves. These waves produce a strong shaking action. They do not pass through liquids. देखिए सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स या फिर शेक वेव्स जो होती हैं, इनका जो रेट होता है, ये इनका पी वेव से जो रेट होता है वो कम होता है. ठीक है, ये शेकिंग एक्शन लेती हैं और ये लिक्विड के थ्रू पास नहीं करती हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. हियर सरफेस वेव्स. The surface waves are the last to arrive and travel over the surface of the earth. These waves are very powerful and cause most of the damage. Their effect is not seen at great depths. और देखिए सरफेस वेव्स होती हैं, ये सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है. ओके, इनका अफेक्ट ग्रेट डेप्थ्स में नहीं देखा जा सकता है. मेजरिंग अर्थक्वेक्स. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल. द अर्थक्वेक ट्रेमर्स are recorded by an instrument called seismograph. The science that deals with the earthquake is called seismography and the earthquake scientists are called seismologists. Okay, देखिए
अब किस तरीके से मेजर किया जाता है इसको, रिचर्ड स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, ओके। और जिस पे मेजर किया जाता है उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं, और इसकी स्टडी को सीस्मोग्राफी बोलते हैं, और जो इसकी स्टडी करते हैं, जिन्होंने इसकी स्टडी की है उन्हें क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, ओके। The Richter scale ranges from 0 to 9. An increase in one point of the Richter scale indicates that force of the earthquake is 10 times greater here than the strength of the previous number. The earthquakes of intensity 6 and above are very destructive. Okay. जो रिचर स्केल है वो 0 से लेके 9 तक मेजर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, वो 6 से अबव आने पर होती है, ओके। डिड यू नो चार्ल्स फ्रांसिस रिचर 1900 to 1985 was an American seismologist. In 1935 he invented the Richter scale to measure the intensity of earthquake, okay। जो चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड थे ये एक सिस्मोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने ही रिचर स्केल को इन्वेंट किया था अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए, ओके। अफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, tremors in the earth's crust are produced due to the passage of shock waves during the earthquake. Most earthquake only last a few seconds, but the biggest one can last up to 7 minutes. Aftershocks may continue for years even. Okay, देखिए जो ट्रेमोर्स होते हैं अर्थ क्रस्ट पे वो प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक अर्थक्वेक के टाइम पर, ओके। जो अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं आते, कुछ सेकंड्स तक आते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वो 7 मिनट्स तक लास्ट करते हैं, ओके। नाउ अर्थक्वेक्स कैन मेक ह्यूज ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इवन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर. Fences, roads and railway lines may be twisted. Damage to houses, buildings, monuments and farms are caused by the earthquakes. On Jan 26, 2001 at 8:46 AM a severe earthquake struck in Gujarat Bhuj. ओके देखिए अर्थक्वेक से करते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज ओपनिंग्स करते हैं, ओके। अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, डिस्ट्रक्शंस होती हैं, फेंसेस, रोड्स, रेलवे ये सब ट्विस्ट भी कर सकते हैं, डैमेजेस होते हैं हाउसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स को, ओके। और 26 जैन को 2001 8:46 AM पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक अर्थक्वेक आया था गुजरात भुज में. मोर देन 10,000 fatalities and a big loss of property occurred due to this earthquake. High-rise buildings, power supply poles and communication poles were collapsed. इस earthquake की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी बिल्डिंग्स गिर गई थी, डिस्ट्रक्ट हो गई थी. ओके आगे बढ़ते हैं. earthquake preparedness. Okay, prevention is better than cure is a very right saying in the case of earthquakes. Local government and disaster management committees are responsible for managing the disaster. Public awareness to be created through sensitization and training programs. Okay, देखिए prevention is better than cure. Okay, देखिए प्रिवेंशन करनी चाहिए, कुछ बुरा हो जाए फिर उसके बाद आप ठीक करोगे, तो ये जो है ये लोकल गवर्नमेंट है वो इस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ओके, पब्लिक अवेयरनेस करानी चाहिए अर्थक्वेक्स को लेके. व्हाट डू वी डू व्हेन अर्थक्वेक अकर्स, क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है. सेफ स्पॉट, टेक शेल्टर अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल. स्टे अवे फ्रॉम fireplace area around the chimney, windows that shelter including mirrors and picture frames. Be prepared, spread awareness among family, friends, neighbors to face any disasters confidently. Okay, देखिए सेफ स्पॉट, कहीं पे भी आपको जैसे किचन की स्लैब है उसके नीचे आपको शेल्टर लेना है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें. किन चीज़ों से दूर रहना है, फायर प्लेस से, चिमनी एरिया से दूर रहना है, विंडो के शेल्टर्स नहीं लेने हैं, पिक्चर फ्रेम से दूर रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है. आपको ऑलमोस्ट अपनी फैमिली को लेके अवेयरनेस देनी है, फ्रेंड्स को, नेबर्स को डिजास्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से. अर्थक्वेक इज in the Kashmir region a case study. A massive earthquake rocked Pakistan, Afghanistan and India in October 2005, leaving around 40,000 dead and wiping out several towns and villages. More than 70,000 people were injured and nearly 5 million were rendered homeless. Okay, देखिए एक बहुत ही बड़ा earthquake आया था, massive earthquake, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में आया था अक्टूबर 2005 में. उस टाइम पे 40,000 people were dead और 70,000 लोगों
जो थे वो इंजर्ड थे. ओके, द अर्थक्वेक मेजरिंग 7.6 ऑन रिचर स्केल वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन मेमोरी ऑफ द रीजन. द quake lasted over a minute. Its epicenter was near Muzaffarabad, the capital of Pakistan occupied Kashmir, POK. It was also felt as far as south as Delhi. Okay, देखिए जो अर्थक्वेक था वो रिचर स्केल पे 7.6 की उस पे आया था, मेजरिंग आई थी उसकी. ओके, नाउ अब यहाँ पे इसका जो सेंटर था जहाँ से ये होना शुरू हुआ था वो था मुजफ्फरबाद, जो कि पाकिस्तान में है. ओके, वहाँ से, और ये वहाँ से होना शुरू हुआ था, दिल्ली तक इसकी मूवमेंट फील की गई थी. ओके, If Muzaffarabad 2/3 of the building were damaged, the city only military hospital crumbled, killing 200 people including doctors and nurses. Thousands of children were trapped in collapsed schools. Around 600 students were buried alive in the Azad Jammu Kashmir University building caved in. Nearly 400 school children died in two schools in Manshera district in the northwest frontier province NWFP of Pakistan. Balakot, of thriving tourist town near Kagan Valley, was flattened on the line of control LOC. At least 38 army men were crushed to death and bunkers and barracks carved in. तो उस एरिया में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी लोग मर गए थे. हॉस्पिटल्स में, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी. ओके, इन द कश्मीर वैली इंडिया, उरी एंड द सराउंडिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट वर द वर्स्ट हिट, followed by areas in Kupwawa, Poonch, Rajouri. 80% of the building in Uri were entirely damaged. Across the Jammu and Kashmir, around 1500 people were killed, over 32,000 houses damaged, and nearly half of the number of the official building including schools and offices were leveled with the ground. The Srinagar Muzaffarabad bus route was blocked with landslides. ओके, देखिए कश्मीर वैली इंडिया में जो है वहाँ पे जो उरी है, जहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वो भी इससे हिट हुआ था, और वहाँ पे 80% जो बिल्डिंग्स थी वो सब डैमेज हो चुकी थी. जो एरिया था जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे 1500 पीपल जो थे वो मर गए थे. 32,000 से भी ज़्यादा हाउसेज जो हैं वो डैमेज हुए थे. श्रीनगर में जो मुजफ्फराबाद बस रूट है वो ब्लॉक हो गया था लैंडस्लाइड्स की वजह से. ओके, नाउ थिंकिंग शॉर्ट. इफ एन अर्थक्वेक अकर्स एंड वी आर इंडोर्स, वी मस्ट टेक शेल्टर बिलो अ टेबल, बेड और फ्रेम और डोर. व्हाई? ये आप बताएंगे मुझे. ओके, नाउ volcanoes. You have read earlier that when there is a subduction by covering tectonic plates, volcanoes are formed. The subducted plate often melts and the magma finds an opening through which it comes out and erupts. This opening generally looks like a pipe and is called the vent. What erupts at the surface through the vent of lava? Look at the figure below. It shows the Caribbean plate of the Cocos plate converged and the Cocos plate was subducted. Locate the vent in the figure. ओके, देखिए नीचे एक फिगर दिखाया गया है आपको, और इस फिगर को ही ऊपर एक्सप्लेन किया गया है. ओके, नाउ volcanic mountains are built by lava and other debris that solidify near the vent. These mountains are cane shaped. These are central type of volcano with the vent in the center. ओके, ये जो volcanic mountains होते हैं ये बिल्ट होते हैं लावा से और बाकी डेब्रिज से जो सॉलिडिफाई होती हैं. ओके, और ये माउंटेन्स जो होते हैं ये कोन शेप के होते हैं और सेंट्रल टाइप के वोल्केनो होते हैं. ओके, डिड यू नो there are volcanoes on the other planets too? The Olympus Mons on Mars is the highest volcano in our solar system with a height of 26.4 किलोमीटर. ओके, देखिए आपको पता है कि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे भी वोल्केनोज हैं, और जो सबसे बड़ा वोल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम में वो मार्स पे है, जिसको बोला जाता है ओलंपस मोन्स. ओके, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स also cause magma to rise and flow out and create a new crust. There the magma comes out through cracks or fissures. It does not erupt at the surface. It just flows out and solidifies. This is fissure type of volcano. Okay, ये जो volcano होता है fissure type of volcano, इसमें क्या होता है ये flow करता है और solidify कर जाता है. Okay, now types of volcanoes. Volcanoes are of three types on the basis of their activity: active, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उनके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. ओके, पढ़ते हैं इन्हें.
Active volcanoes are those that are erupting or have erupted recently or show signs of unrest. Popocatépetl in Mexico 2000, Hasho in Japan 1995, the Mount Etna in Italy 1997 are examples of active volcanoes. देखिए active volcanoes वो होते हैं जो इरप्ट होते हैं, रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, ओके, जो इरप्टिंग अभी इरप्ट हो रहे हैं और इरप्टेड अब इरप्ट होंगे, ओके, रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। डोरमेंट वोल्केनोस आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हैव नॉट बीन एक्टिव. These are known as the sleeping volcanoes, which may wake up at any time. Some volcanoes may be dormant for thousands of years before becoming active. Again, Mount Baker and Mount Hood, both USA and Nisros, Greece, आर एग्जाम्पल ऑफ डोमेंट वोल्केनोस. ओके, डोमेंट वोल्केनोस वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इरप्ट नहीं हुए हैं, ना ही वो एक्टिव हैं, ओके, लेकिन ये कभी भी इरप्ट हो भी सकते हैं, ओके। तो इस टाइप के जो वोल्केनोस होते हैं इनको स्लीपिंग वोल्केनोस बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। माउंट बेकर, माउंट हुड, दोनों के दोनों यूएसए में है। निश्योर जो है वो ग्रीस में है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन हिस्टोरिक टाइम्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट नो फर्दर इरप्शन will take place in future. These are also known as the dead volcanoes. Two examples are Mount Warming, Australia and Mount Elbrus, रशिया, ओके। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो होते हैं जो कभी इरप्ट हुए ही नहीं हैं और शायद आगे भी नहीं होंगे, उनको डेड वोल्केनोज बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं माउंट वार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में और माउंट एल्ब्रस रशिया में, ओके। लेट्स डू इट। द रीसेंट इरप्शन ऑफ द Eyjafjallajökull volcano is Iceland threw out fine glass-rich ash into the atmosphere. It thereby disrupted air traffic across Western and Northern Europe and caused inconvenience of air travel. Did you know that despite of technological development, nature still continues to dominate technology? Discuss in class. ये आप खुद से करेंगे. Continuous movement, formation of mountains. The formation of mountains is attributed to the movement of lithosphere plates, giving rise to horizontal and orogenic movements. Such movements result in folding and faulting of the Earth's crust and are responsible for the formation of mountains. Okay, mountains की formation किस तरीके से होती है, ये डिपेंड करता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे, ओके। ये राइज देती हैं हॉरिजेंटल और ओरिजेंटिक मूवमेंट्स को, ओके। इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती है इसकी वजह से फोल्डिंग और फोल्टिंग जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के माउंटेन्स के लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेजर लैंडफॉर्म्स. Endogenic forces are responsible for the formation of various landforms on the Earth's surface, whereas the exogenic forces tend to reduce the elevation of the existing landforms. The landform is continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Okay, देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स के लिए जो हमारे अर्थ के सरफेस पे होती हैं। वहीं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो रिड्यूस करती हैं एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स को, ठीक है। नाउ लैंडस्केप जो है वो दो प्रोसेसेस में होता है, जैसे कि वेदरिंग और इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, whereas the erosion is the wearing away of the landscape by different agents. The wind, water and ice. The eroded material is transported by wind, water etc. ओके, देखिए वेदरिंग क्या है. वेदरिंग ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. रॉक्स जब टूटते हैं अर्थ के सरफेस पे आते हैं उनका इरोजन होता है, ओके. इनके एजेंट्स कौन से होते हैं? विंड, वाटर और आइस, ओके. इरोडेड मटेरियल जो कि ट्रांसपोर्ट होता है वो विंड और वाटर ही होता है, ओके. एंड आर डिपोजिटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. और जब ये इस तरीके से इरोड होके आते हैं तो अलग अलग प्लेसेस पे डिपोजिट हो जाते हैं. दस द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ. ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बने हैं अर्थ पे, ओके. वर्क ऑफ अ रिवर.
The running water in the river erodes the landscape. The place where the river originates is called the source, and the place where the river joins another water body like sea, ocean or lake is called a mouth. Okay, देखिए रनिंग वाटर जो होता है रिवर का उसे लैंडस्केप बोला जाता है, वहीं जो ओरिजिनेट होता है रिवर का जो ओरिजिनेट होता है उसे सोर्स बोला जाता है, और जब वो दूसरे रिवर्स को ज्वाइन करती है, किसी भी वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है उसे सी, ओशन, लेक या फिर जैसे कि ये सी, ओशन, लेक हो गया, उनको वहाँ का माउथ बोला जाता है. ओके, द वन ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इट्स कॉल्ड द रिवर बेसिन. ओके, जब एक नदी दूसरी नदी को ज्वाइन करती है जहाँ से उनकी ट्रिब्यूटरी बनती है उसको रिवर बेसिन कहा जाता है. अ रिवर इरोड्स द रॉक्स over which it flows and transports the eroded material and it deposits the material transported by it. तो जब ये मूवमेंट होती है तब इनके साथ साथ मटीरियल्स भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, when the river falls almost vertically down a steep valley side, a waterfall is formed. When the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. The ends of the meander loop come closer and closer due to the continuous erosion and disposition along with its sides. देखिए, जब रिवर किसी ऊंचाई से फॉल होती है तो उसको क्या बोला जाता है? वाटरफॉल बोला जाता है. वहीं जब ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ वो मूवमेंट करती है तो उसको मींडर्स बोला जाता है. ओके, आफ्टर सम time the meander loop cuts off from the river and forms a cut off lake which is known as oxbow lake. okay, जब रिवर कट हो जाती है उनसे मींडर से और अपने आप एक छोटा सा लेक बना लेती है उसे कट ऑफ लेक बोला जाता है या फिर ऑक्सबो लेक बोला जाता है. ओके, नाउ व्हेन द रिवर ओवरफ्लोड इस बैंक इट लीड्स टू द फ्लडिंग एंड द नेबरिंग एरियाज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स along with its bank. This result in the formation of flat fertile floodplain and raised river banks are called levees. ओके, देखिए जब वाटर ओवरफ्लो होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लड आ जाता है, और फ्लड के साथ साथ उसके साथ बहते हुए आते हैं काफ़ी सारे मटेरियल्स, सेडिमेंट्स बैंक ऑफ द रिवर से. ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से लैंड फर्टाइल जो होती है, लैंड जो होती है वो फ्लैट फर्टाइल हो जाती है. ओके, फ्लड प्लेन हो जाती है. ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. When the river approaches the sea, its speed decreases and the river begins to break up into the number of streams known as distributaries. देखिए, जब रिवर अप्रोच करती है सी में, ओके, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है, और वो ब्रेक हो जाती है किसमें? स्ट्रीम्स में, जिसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है. द रिवर बिकम्स वेरी स्लो एंड इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा. देखिए, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई है, ओके, अब वो धीरे धीरे बह रही है, उसमें डिपॉजिट हो रही है, तो उसका खुद का अब एक माउथ हो गया. उस कलेक्शन ऑफ जहाँ से वो कलेक्ट करती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेके आती हैं, उसको क्या बोला जाता है? जहाँ पे लेके आती हैं, जहाँ पे फ्लो करती है, उसको डेल्टा बोला जाता है. ओके, नाउ डिड यू नो द सुंदरबन डेल्टा is a river delta, Ganga Brahmaputra delta, which is the world's largest delta. This is almost fertile region of the world, which is given in the nickname the green delta. देखिए, सुंदरबन डेल्टा ये जो है ये रिवर का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों से मिलके बना है. सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेल्टा ये है और सबसे बड़ा है वर्ल्ड का डेल्टा. ओके, इसे ग्रीन डेल्टा भी बोला जाता है. वर्क ऑफ सी वेव्स. Coastal landforms are the result of the erosion and deposition by the sea waves which continuously strike at rocks. Cracks developed by waves become larger and wider and result into the formation of sea caves. When a headland projecting into the sea is attacked by sea waves from both sides, a thorough passage is created. This is known as a sea arc. देखिए, एक सी आर्क किस तरीके का होता है, नीचे फोटो दिखाई गई है, ठीक है, उसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है. ओके, और इरोजन की वजह से जो सी वेव्स हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स पे आ जाती हैं रॉक्स के. ओके, और रॉक्स पे कंटिन्यूसली जब स्ट्राइक्स पे जाती हैं तो इस तरीके के सी आर्क बन जाते हैं. ओके,
आगे बढ़ते हैं यहाँ से। When the roof of the sea arc is eroded, it collapses and the pillars of the rocks are left standing in the open water. इसी तरीके से sea arc बनता है, जब वो जो मूवमेंट होती है पानी की इस तरीके से आती है कि वो उसके रूफ टॉप को छोड़ देती है लेकिन नीचे से जाती है, तो इस तरीके के दो पिलर्स रह जाते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड स्टैक्स, इन्हें स्टैक्स कहा जाता है। दिस स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. Sea waves deposit sediments along its shores, forming breaches. Work of ice. Rivers of ice are called glaciers, which to erode the landscape. As the glacier passes through the valley, rock fragments falls into the moving ice, which acts as tools of erosion. The glacier cut deep hollows along the slope of the mountain, developing the armchair-like depression called cirque. When the glacier ice melts and the depression is filled with water, forming a lake, the lake is termed as tarn. When the glacier starts melting, the material carried by the glacier gets deposited. These deposits are glacier moraines. देखिए, जब ग्लेशियर मेल्ट करना स्टार्ट होता है तो उसके जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो उसके थ्रू आते हैं और डिपोजिट हो जाते हैं ओके एक जगह पे आके। इन डिपोजिट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। ओके, वर्क ऑफ विंड. विंड का क्या काम होता है? इरोजन इन डेजर्ट इज कॉज्ड बाय द विंड. डेजर्ट्स में जो इरोजन होती है वो विंड के थ्रू होती है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड मॉइस्चर, रॉक फ्रेगमेंट्स लाई लूज ऑन द सरफेस ऑफ विंड ब्लोज फ्रीली. ओके, a strong and wind carries with it a large amount of sand, dust particles and gravel, which acts as eroding factor for rocks. As the wind cannot carry the rocks particles high in the air, it erodes the lower part of the rock more than the higher part. Such type of rocks are called mushroom rocks, as they have a narrow base and a broad top. देखिए, इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं इन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो बेस जो होता है वो काफ़ी नैरो होता है और टॉप जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। देख लीजिए यहाँ पे मशरूम रॉक्स किस तरीके के दिखते हैं। When the wind blows, it transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand particles fall down to get deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can transport them to a larger distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. The most extensive loess deposits are in North China. ओके, देखिए, जब विंड ब्लो करती है वो ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ओके, तो ये जिस तरीके के सैंड ड्यून्स मतलब कि इस तरीके के मिट्टी के टीले बना देती है, सैंड ड्यून्स बना देती है। ओके, फिर ये जो सैंड होती है ये लार्ज एरिया में डिपोजिटेड होती हैं, इन्हें लूज बोला जाता है। और ये जो एक्सटेंसिव लूज होती हैं ये डिपोजिट नॉर्थ चाइना में ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, now okay, let's go to the exercises. Question number 1, take the correct answers. Which of the following is an exogenic movement? exogenic movement इनमें से कौन सा है? वो है रिवर। ओके, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, एक होता है इंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। ओके, नाउ बाकी के खुद से करेंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स. रिफ्ट वैली इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेबन. यस, दिस इज ट्रू, उसे ग्रेबन भी बोला जाता है। आगे, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. 3 डिफरेंट टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं। ओके, एक होता है आपका एक्सटिंक्ट, एक होता है आपका डोरमेंट और एक होता है आपका एक्टिव। ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं, बाकी आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. उन 3 टाइप्स के वोल्केनोज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जो सबसे पहला है वो आपका है एक्टिव. एक्टिव का मतलब जो अभी रिसेंट में जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो रहा है या फिर होगा। ओके, उसको हम बोल देते हैं एक्टिव वोल्केनोस. उसके बाद आता है डोरमेंट. डोरमेंट वोल्केनोस वो होते हैं जो थाउजेंड्स ईयर से इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, उनको हम डोरमेंट वोल्केनोस बोलते हैं. लास्टली आपका बचता है एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो होते हैं जो कभी इरप्ट हुए ही नहीं है और ये माना जाता है कि कभी वो इरप्ट होंगे भी नहीं, उन्हें डेड वोल्केनोस भी बोला जाता है. ओके, नाउ बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. आउट ऑफ द बॉक्स. Why do some rocks have a shape of mushroom? During an earthquake, large buildings collapse. Why? ये आप खुद से करेंगे.